बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द वेरिएशनल प्रिंसिपल्स। उसमें फर्स्ट टॉपिक है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट if the configuration of a system is given at two instants t1 and t2, then the value of the time integral of kinetic minus potential energies, that is Lagrangian, L is equal to t minus v, is stationary or extremum, meaning minimum or maximum, for the path actually described in the motion compared with any other infinitely near paths which might be described in the same time between the same configurations. कि अगर किसी सिस्टम को डिफाइन किया गया है टू कन्फिगरेशंस पे, पहली कन्फिगरेशन जो है वो t1 टाइम पर है, टाइम t1 पे, और दूसरी कन्फिगरेशन उसकी टाइम t2 पर है। तो फिर इस केस में जो टाइम इंटीग्रल लेंगे हम किनेटिक माइनस पोटेंशियल एनर्जी का, दैट विल बी स्टेशनरी फॉर द पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल यहाँ तीन डिफरेंट पाथ दिखाए हुए, यहाँ से इस पाथ पे भी जा सकता है, इस पाथ के थ्रू भी वहां जा सकता है, इस पाथ के थ्रू भी, ये तीन डिफरेंट पाथ दिखाए गए हैं। तो ये जो टाइम इंटीग्रल है किनेटिक माइनस पोटेंशियल एनर्जी का, ये स्टेशनरी के एक्सिमम उस वक्त होगा जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाते हुए एक्चुअल पाथ में से गुजरे, फॉर द पाथ actually described in the motion compared with any other infinitely near paths which might be described in the same time between the same configurations. So according to Hamilton principle, the motion of a system from its position in configuration state at time t1 to time t2 is such that the line integral I is equal to integral t1 to t2 L dt is an extremum for the correct path of motion. The action integral I is stationary. That is, out of all possible paths along which the system point could travel from its position at time t1 to its position at time t2, it will actually travel along the path for which the integral in equation 1 is an extremum, whether minimum or maximum. Hamilton principle can be restated by saying the motion is such that the variation of the line integral I for fixed t1 and t2 is 0. That is, delta I is equal to delta integral t1 to t2 L dt is equal to 0. If L can be written as function of generalized coordinates q1, q2 up to qn, and generalized velocities q1 dot, q2 dot, qn dot, and time, then this integral can be written as delta I is equal to delta integral t1 to t2 L function of q1, q2, qn, q1 dot, q2 dot, qn dot time dt, and this is equal to 0. Here qj of t and qj dot of t are to be varied subject to delta qj at time t1 is equal to 0 and delta qj at time t2 is equal to 0. यानी ये जो इक्वेशन है कि ये 0 उसी वक्त होगी, ये इक्वेशन कि जब चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स एट टाइम t1 यानी इनिशियल जो टाइम कन्फिगरेशन है, और चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट एट टाइम t जो फाइनल कन्फिगरेशन है, इज इक्वल टू 0. Here the delta represents the change in the quantity. Proof of Hamilton's principle. Consider a system of n particles with ith particle having mass mi and coordinates vector ri at a given instant of time t1. According to Newton's second law of motion, force can be written as the time rate of change of linear momentum, or summation I mi
2 Ri by dt2 which is equal to summation I mi Ri double dot, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हम आर आई डबल डॉट लिख सकते हैं। तो इसमें एफ आई डॉट डेल्टा आर आई, आर आई के साथ डेल्टा आर आई के साथ इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो दिस कैन बी समेशन आई एम आई आर आई डबल डॉट डॉट डेल्टा आर आई। एफ आई डॉट डेल्टा आर आई को हम लिख सकते हैं वर्चुअल वर्क इन डेल्टा डब्ल्यू, सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन आई एम आई आर आई डबल डॉट डॉट डेल्टा आर आई। Now kinetic energy T can be written as summation I T I, इसका मतलब है T1 plus T2 plus T3 plus so on, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो किनेटिक एनर्जी है उसका सम, एंड Ti is equal to half mi vi square, so half mi summation I mi, अब vi की जगह हमने लिख दिया ri डॉट, तो ये ri डॉट का स्क्वायर बन गया vi स्क्वायर dr by dt ri डॉट। तो डेल्टा टी यानी इसका हम डिफरेंशियल ले लें, तो इट विल बी हाफ एम आई और ये आर आई डॉट का स्क्वायर जो है उसका डिफरेंशियल, जिसको फिर लिख सकते हैं 1/2 समेशन आई एम आई, और आर आई डॉट का स्क्वायर है तो पावर से आएगा 2 आर आई डॉट, और पावर को हटाएंगे तो फिर आर आई डॉट का डिफरेंशियल यानी डेल्टा आर आई डॉट। सो दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू समेशन आई एम आई आर आई डॉट डॉट delta Ri dot. Now consider a term summation I time derivative of mi Ri dot dot delta Ri. This can be written as summation I mi को डेरिवेटिव से बाहर निकालेंगे तो Ri डॉट का डेरिवेटिव डॉट डेल्टा Ri, फिर इसको छोड़ के सेकंड टर्म में इसका डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव, तो mi d Ri डॉट बाई डी टी डॉट डेल्टा आर आई प्लस समेशन आई एम आई आर आई डॉट, इसको छोड़ दिया, अब इसका टाइम डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर आई, और इसको फिर हम लिख सकते हैं समेशन आई एम आई, ये आर आई डॉट का एक और टाइम डेरिवेटिव यानी 2 टाइम डेरिवेटिव होगा, जिससे आर आई डबल डॉट लिख सकते हैं। ये टर्म ऐसे ही आ गई डेल्टा आर आई प्लस समेशन आई एम आई आर आई डॉट, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा को बाहर ले आए तो ये डी आर आई बाई डी टी बन जाएगा, डेल्टा को पहले काट दें तो ये डी आर आई बाई डी टी, इसको हम आर आई डॉट लिख सकते हैं, तो ये टर्म जो है वो डेल्टा आर आई डॉट, इसको हम लिख सकते हैं, इस टर्म को डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर आई को हम डेल्टा आर आई डॉट लिख सकते हैं। सो डी बाई डी टी ऑफ समेशन आई एम आई आर आई डॉट डॉट डेल्टा आर आई इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास इस इक्वेशन 1 के मुताबिक डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल है, और ये जो सेकंड टर्म है ये हमारी इस इक्वेशन 2 के मुताबिक डेल्टा टी के इक्वल है, सो वी कैन राइट डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा टी। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन both sides of this equation with respect to time, take starting from t1 to t2, we can write integral t1 to t2 time derivative of summation I mi Ri dot dot delta Ri dt is equal to integral t1 to t2 delta w plus delta t dt, और ये जो है summation I mi Ri dot delta Ri is equal to t1 to t2 minus delta v plus delta t, since delta w is equal to minus delta v। कि दोनों साइड पे इस इक्वेशन के दोनों साइड पे हमने इंटीग्रल ले लिया फ्रॉम t1 टू t2 dt के साथ, और फिर ये जो टर्म थी डेल्टा w, इसको हमने माइनस डेल्टा v जो है पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है, उसके साथ इसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ अगर आप देखें तो हम ये dt जो है इस dt के साथ कैंसिल हो जाएगा, d इंटीग्रल के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास
जो बचेगा वो समेशन आई एम आई आर आई डॉट डॉट डेल्टा आर आई फ्रॉम T1 टू T2, ये चीज़ बच जाएगी। यानी ये डी बाई डी, डी इंटीग्रल से कैंसिल होगा और डी टी इस डी टी से कैंसिल होगा, तो ये जो टर्म है विद लिमिट हमारे पास बच जाएगी। तो लिमिट फ्रॉम T1 टू T2। अब इसमें हमने लिमिट पुट करनी है इस साइड पे, तो ये आर आई डॉट की वैल्यू T2 पर और डेल्टा आर आई की वैल्यू T2 पर, ऐसे ही फिर आर आई डॉट की वैल्यू T1 टाइम पर और डेल्टा आर आई की वैल्यू टाइम T1 पर। पीछे मैंने आपको बताया था कि जो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट है एट इनिशियल पॉइंट T1 और चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट एट फाइनल पॉइंट T2 जो है ये ज़ीरो होते हैं। डेल्टा QJ T1 is equal to 0 and delta QJ at point T2 is equal to change of coordinate at T1 is equal to 0 and change of coordinate at T2 is equal to 0। तो ये जो टर्म है कि डेल्टा आर आई एट टाइम T2 दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड डेल्टा आर आई एट टाइम T1 मस्ट बी इक्वल टू 0। समेशन आई एम आई आर आई ये पुट कर रहे हैं हम, डेल्टा आर आई टाइम T2 माइनस डेल्टा आर आई T1 इज इक्वल टू T1 टू T2। यहाँ राइट साइड से हमने डेल्टा को, राइट साइड से डेल्टा को कॉमन निकालना, तो प्लस टी माइनस वी हमारे पास ये आ गया, डेल्टा टी माइनस वी डी टी। और हम जानते हैं कि डेल्टा आर आई एट टाइम T2 इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा आर आई एट टाइम T1 is equal to 0 where L is equal to T minus V, so that this term will become 0, in term on the left hand side becomes 0 और T minus V की जगह L पुट करेगा तो T1 to T2 delta L dt is equal to 0, which is the Hamilton principle. Here is an example. Given a mass spring system consisting of a mass m and linear spring of stiffness k as shown in figure, find the equation of motion using Hamiltonian procedure. Assume that the displacement x is measured from in unstressed position of string Let's find potential kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is equal to half mv square, and in this case v is equal to dx by dt along x axis हम ले रहे हैं। So x dot gives the speed velocity, so kinetic energy t is equal to half mx dot का square, and potential energy in this case is given by half kx square, where k is the spring constant or stiffness of the spring. As we know that L is equal to T minus V, तो L इसमें वैल्यू पुट कर दें, T की जगह हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस V की जगह हाफ के एक्स स्क्वायर। Now, according to Hamilton principle, delta T1 to T2 L dt is equal to 0, which implies L की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा L dt। इसका डेल्टा जब लेंगे तो ये इसका जब डेल्टा लेंगे तो 1/2 m ये बाहर आ जाएगा, डेल्टा ऑफ x डॉट स्क्वायर।
ये पहले पावर से तो 2x डॉट और फिर डेल्टा x डॉट बनेगा, 2 से कैंसिल होगा तो m x डॉट डेल्टा x डॉट ये बनेगा, mx डॉट डेल्टा x डॉट। ऐसे ही -1/2 के उससे डिफरेंशियल से बाहर आएगा और डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर जब लेंगे तो पावर से 2x और डेल्टा x, इससे 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा फिर m x डॉट डेल्टा x डॉट माइनस के एक्स डेल्टा x dt इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल t1 टू t2 m x डॉट, और ये जो डेल्टा x डॉट है इसको लिख दिया d बाई डी टी ऑफ डेल्टा x। इस डेल्टा x डॉट को लिख दिया हमने टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा x dt, माइनस ये ऐसे ही लिख दी टर्म के एक्स डेल्टा x dt इक्वल टू 0। नाउ जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं वॉल्यूटिंग फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इसका हम इंटीग्रल ले रहे हैं m x डॉट, इसको ऐसे ही लिखा फर्स्ट फंक्शन, इसको कंसिडर कर लें, ये सेकंड फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, जब इसका इंटीग्रल लेंगे dt से कैंसिल होगा, d इंटीग्रल से तो सिर्फ डेल्टा x टर्म बचेगी विद टाइम लिमिट्स t1 टू t2 और माइनस अब ये डेल्टा x ऐसे ही आ जाएगा और m x डॉट जो है m जो है स्केलर क्वांटिटी है या डेरिवेटिव या इंटीग्रल के इंडिपेंडेंट है, ये m ऐसे ही रहेगा और x डॉट का टाइम डेरिवेटिव हो गई, टाइम के लिहाज से इंटीग्रल है तो ये x डबल डॉट बन जाएगा। यानी इसमें ये फर्स्ट फंक्शन mx डॉट और फिर सेकंड फंक्शन ये जो था इसका इंटीग्रल जो हमारे पास सॉल्व होने के बाद डेल्टा x आ गया फ्रॉम लिमिट t1 टू t2 और फिर ये डेल्टा x हमने ऐसे ही लिखा और इस टर्म का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो ये mx डबल डॉट बन गया dt इज इक्वल टू 0। अब जैसे ये था कि ये जब हम ये डेल्टा x में अपर लिमिट पुट करेंगे तो डेल्टा x एट t2 और डेल्टा x एट t1, तो ये चूंकि चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट है एट पॉइंट इनिशियल पॉइंट t1 और फाइनल पॉइंट t2 तो ये वैल्यू 0 होंगी, यानी डेल्टा x एट t1 इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा x एट t2 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो फिर 0 हो जाएगी तो माइनस हुई है t1 टू t2 डेल्टा x mx डबल डॉट dt, ये हमारे पास बचेगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ इस इंटीग्रल की जगह पुट कर दें, देयरफॉर माइनस t1 टू t2 डेल्टा x mx डबल डॉट dt एंड माइनस t1 टू t2 kx डेल्टा x dt, यानी इस टर्म की जगह ये माइनस वाली वैल्यू पुट की, हमारे पास ये आ गया माइनस, आप दोनों कॉमन निकाल सकते हैं और इंटीग्रल भी और dt भी कॉमन निकलता है और डेल्टा x भी कॉमन निकलता है दोनों टर्म्स। तो t1 टू t2 माइनस खत्म कर दें, डेल्टा x कॉमन निकाल लें, mx डबल डॉट dt भी कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ से kx, यहाँ से mx डबल डॉट बचेगा, यहाँ से kx, तो डेल्टा x और dt ये कॉमन इक्वल टू 0। अब ये इंटीग्रल जो है इसके आंसर 0 आ रहा है, तो जो जिसके ऊपर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं यानी इंटीग्रैंड ये जो है ये भी 0 हम ले सकते हैं। If the integral is 0, its integrand can also be taken 0, ये कैलकुलस का रूल है। तो फिर हमने इंटीग्रल और dt हटा दिया, बाकी बच के हमारे पास mx डबल डॉट प्लस kx मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स हैं, एक ब्रैकेट वाली टर्म और डेल्टा x, ये मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आ रहा है। अब या दोनों 0 होंगी या दोनों में से एक लाजमी 0 होगी, क्योंकि डेल्टा x के लिए जरूरी नहीं है कि वो 0 हो, कैन नॉट बी इक्वल टू 0 हो, 0 भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि 0 हो। देन इन दैट केस mx डबल डॉट प्लस kx जो है वो 0 होगा और m इज इक्वल टू माइनस kx, जिसमें mx डबल डॉट जो है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो f इज इक्वल टू माइनस kx, यानी ये वो है रिस्टोरिंग फोर्स, f इज इक्वल टू माइनस kx, सिंपल हार्मोनिक मोशन रिस्टोरिंग फोर्स को शो कर रहा है। This is the equation of motion in x double dot is equal to minus k by mx, which is the equation of motion of a harmonic oscillator. And that's all for today.